Hello students, welcome back. I hope you all are doing well. So let's begin. We are in the fourth chapter and today we are going to cover the features of planning. All right. So we have done the concept. Now let's begin with the features. If you have missed anything in the plan concept or the importance, just go through that because those are very important to understand the features. All right. Chalo, let's begin. So, features of planning. See, it is written in your book, and I have taken this example where it says that the if it is the example of Polaris, a company है जो कि expansion के plans बनाती है. Okay, their objective is to increase their capacity so that they can employ 800 more professionals. Okay, so एक ऐसी कंपनी है जो कि एक्सपेंशन के लिए अपनी कंपनी एक्सपैंड करने के लिए वो ये डिसाइड करती है कि उन लोगों को 800 पीपल और एम्प्लॉय करने हैं. देयर टारगेट टाइम इज 6 months. ओके, उनका जो ड्यूरेशन है जितने में उनको ये एक्सपैंड करनी है वो 6 months है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द करंट ईयर हैज ऑल्सो बीन क्लियरली स्टेटेड which is to increase capacity by 1500 to 2000 more professionals. Okay, तो उनका जो करंट ईयर का ऑब्जेक्टिव है has also been clearly stated. It is state मतलब ऑलरेडी पूरा क्लियर है कि उनकी कैपेसिटी जो है वो 15 से 2000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स की हो जाएगी. Okay, so since planning is the primary function of management, they have to set their objectives first. Okay, क्योंकि जो प्लानिंग है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए दे हैव टू डिसाइड कि दे हैव टू डिसाइड कि एक्चुअल में उनको सबसे पहले करना क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स उनको सेट करने पड़ेंगे सबसे पहले. सो all business follows the same pattern of the planning. You will be able to find some similarities in the features of planning and what you see in real life. Okay, तो जितने भी तरह के बिजनेस होते हैं वो सब लोग इसी सेट में काम करते हैं, यही पैटर्न होता है उनका, जहाँ पे वो सबसे पहले प्लान करते हैं एंड डिसाइड करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स. ओके, उसके बाद में दे प्रोसीड फॉर फर्दर. सो जैसे कि वो कंपनी है जिन्होंने एक्सपेंशन का सोचा भी है, तो पहले उन्होंने एक्सपेंशन का सोचा एंड देन दे प्लान्ड कि उनको क्या एक्सपेंड करना है, व्हाट टू एक्सपेंड. Okay, then what they planned, how to expand and उनका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए. Okay, तो they have planned this way. So this is how it is. So basically प्राइमरी फंक्शन जो भी होता है मैनेजमेंट का या किसी भी काम को के लिए प्रोसीड करने का, it is the planning. Okay, now you will be suppose अभी आप सिर्फ इस चीज से रिलेट कर पाएंगे because this thing is very very important where you will be knowing that career plan करना है आपको. Okay, अगर suppose आपको 12th, there are so many people who have changed their streams after 12th. Okay, क्योंकि उनको लगता नहीं है कि ये it is good for them, they are capable to do in that stream, so they change the streams. So what happens is सबसे पहले क्या होता है, आपको जो भी आपको आपकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि what are the values, what you actually want to do, what will be the suitable according to your lifestyle, your circumstance and so on. Okay, then you will learn about yourself कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, what are your likes, what are your dislikes. Okay, so this is how you will learn yourself कि आपको किस में enjoyment हो रहा है, किस में मजा आ रहा है, कौन से subject में आपको interest है. Then you will identify your skills. ओके, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ओके दीज आर माय स्किल्स, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स. ओके, तो यहाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ. तो एंड देन आइडेंटिफाई करने के बाद में उसी प्रोसीजर में यू विल रिसर्च अबाउट द करियर ऑप्शंस रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट. ओके, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यू विल रिसर्च सो मेनी थिंग्स एंड then you will link your major and your career. Okay, so this is how it will be. Then you will link कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपके इंटरेस्ट के साथ में कौन सा क्या मैच कर रहा है. और so then you will this is how you will plan your career.
एंड दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी, बिकॉज जो लोग हवा हवा में एकदम मतलब यू नो ऐसे देख के दूसरों को देख के दे प्लान, नो इट वोंट बी सक्सेसफुल. आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रिग्रेट दैट ओके हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, व्हाट शुड वी डू, ऐसा होता है. सो इसी तरीके से करियर प्लान करना चाहिए. एंड मतलब अगर आप में से मतलब few of you have any doubts in it, तो please reconsider your interest and relearn everything about yourself and then proceed further. There is never too late. Okay, so this is how it is. तो प्लान भी हम इसी तरीके से करते हैं. तो करियर प्लानिंग के लिए भी you will मतलब you know you will follow this process. और प्रोसीड करने से पहले सबसे पहला जो काम होगा वो होगा करियर प्लानिंग. ऑलराइट, so this is how it is. Okay, chalo next. So try and identify the planning function of the management has certain special features light on its nature and scope as well. Okay, तो ये जो भी nature है इसके, ये nature shows too many different these features shows too many natures of planning कि planning actual उसका nature किस तरीके का है, how does it you know how does this can be understand and उसका कहाँ कहाँ scope है. Okay, ये सब कुछ अपन अभी पढ़ेंगे. First is planning focuses on achieving objectives for sure. See, as we have seen that you know हर जगह अपन ने बात करी concept में, importance में, हर जगह कि planning जो है वो objectives के लिए ही है. planning में objective set करना होता है. Now, चलो organization में क्या होता है कि एक जनरल पर्पस जो होता है वो सेटअप किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन खुद जो होता है वो एक जनरल पर्पस के पे फोकस करके सेटअप होता है. ओके, तो स्पेशल गोल्स आर सेट इन द प्लान्स along with the activities to be undertaken to achieve the goals. Okay, तो स्पेशल गोल्स बनाए जाते हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, चाहे आप कोई तरह का ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, इधर इट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, एंटरप्राइज, उनके एक सर्टेन सेट ऑफ पर्पजेस रहते हैं जो कि जनरल पर्पज होते हैं. अब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टू गिव मोर एंड मोर सर्विस हो सकता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टू गेन प्रॉफिट. तो ये जनरल पर्पज है. अभी इन जनरल पर्पज को स्पेशलाइज करके हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्पेशल गोल सेट करता है अपने, और उसके लिए एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करनी है उन एक्टिविटीज की प्लानिंग करता है. ओके, तो दस प्लानिंग इज जब वो एक्टिविटीज गोल को सर्टेन करके प्लान करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स प्लानिंग इज पर्पसफुल. ओके, दैट मीन्स व्हाट, प्लानिंग इज पर्पसफुल बिकॉज आपके पास में एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है जो कि जनरलाइज होके स्पेशलाइज्ड गोल बन के प्लान मतलब उसी गोल को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग कर रहे हैं. इट विल बी पर्पसफुल एक्टिविटी. ओके, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्री डिटरमाइंड गोल, प्री डिटरमाइंड अचीवमेंट को एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, यू नो देयर विल बी नो मीनिंग इफ यू वोंट हैव अ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल. अगर आपको पता ही नहीं है, सपोज इन योर 12th एग्जामिनेशन यू हैवंट हैव आइडिया कि आपका प्लान क्या है. सी, whenever you will interact to me, I will be asking to you that what is your plan, what is your purpose, why are you you know even standing in the 12th class, what is your purpose, what do you want to do in your life. You will be saying अभी तो कुछ पता नहीं है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं अभी तो कुछ पता नहीं, बाद में देखेंगे, अभी देखा जाएगा. तो they don't have any planning, so I don't think so they can do anything in their life. If you will be saying कि okay मैम 70 to 80% लाना है, अगर कोई एवरेज बच्चा भी बोलता है तो he has that plan, all right, and accordingly I will be saying no, we'll crack between this. Okay, so वो मेरा प्लान है, ये आपका प्लान है, but you have to plan at least. तो predetermined plan होना बहुत important है, which includes planning itself. Okay, so next is planning is a primary function of management, as we have studied, we have seen in the Polaris वाला example, जहाँ पे अपन ने देखा कि उनको अपना business extend करना है, तो they took the primary function of management, that is planning. उन्होंने plan किया पहले. तो planning lays down the base for the functions of management. All other managerial functions are performed within the framework of plans drawn.
ओके कितना भी कोई भी ऐसे कोई भी तरीके का बिजनेस हो, कोई भी तरीके का प्लान मतलब प्लान हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, या आपकी कोई तरह की कोई विश हो, कोई डिजायर हो आपकी बिजनेस को लेकर कि आपको इस तरीके से कोई भी तरीके का विजन हो, एनीथिंग एल्स हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बिगिन विद प्लानिंग, विद रिस्पेक्टिव प्लानिंग। उस वो प्लान तो होगा ही होगा। ओके, इट विल बिगिन दिस वे। प्लानिंग के बिना कुछ होगा नहीं। तो अगर मैनेजमेंट में या फिर इफ यू वांट टू स्टडी द बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट, ओके, जैसे कि आपने एक डेमो मेरा एक डेमो सेशन में देखा होगा जहां आई वाज एक्सप्लेनिंग व्हाई इज दिस सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, तब मैंने ये बताया था यू हैव टू प्लान, you have a strategy. What will you plan? You will plan that you'll see the index, you'll see the syllabus, okay, you'll see, right? syllabus को देखे बिना पढ़ाई करना शुरू कर दोगे? नहीं करना। अगर किसी ने करी है तो भी नहीं करना। मतलब it will be blunder, don't do that। तो index देखेंगे आप, ओके, उसके बाद में यू, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन देखने के बाद में यू विल बी सीइंग कि ये सिलेबस है, एंड आप सेपरेट करेंगे कोर्स को कि इतना 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 इतने महीनों में करना है या वट एवर इट इज। तो पढ़ाई करने से पहले यू विल फर्स्ट प्लान, यू विल सेट ऑब्जेक्टिव एंड यू विल प्लान एंड देन यू विल सेट ऑब्जेक्टिव्स कि ओके ये हमारा प्लान है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इट विल बी द फर्स्ट एक्टिविटी यू विल डू व्हाइल डूइंग एनीथिंग। Okay, so it is the primary function, it is the first activity, it is the initial activity. All right, so thus planning precedes other functions. This is also referred as the as the primacy of planning. ये word याद रखना, जो primary function है उसको हम primacy of planning भी बोलते हैं। Okay, the various functions of management are interrelated and equally important. However, planning provide the basis of all the functions. See, जितने भी फंक्शंस हैं, आप टोटल 5 फंक्शंस हमने पढ़े थे, ओके, एंड देयर आर अदर्स आल्सो जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर जो है वो 5 फंक्शंस ये वाले हैं। तो वहां हमने पढ़ा था, लेकिन और वो सारे के सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यू नो दे आर इम्पोर्टेंट, दैट इज फॉर श्योर, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट व्हाट हैपेंस इज प्लानिंग जो है वो एक बहुत बड़ा बेसिस है, इट इज द बेसिस ऑफ ऑल द अदर फंक्शंस। जितने भी फंक्शंस हैं उनके लिए ये एक ये एक वो बेस का काम करता है सारे फंक्शंस के लिए। नाउ यू विल बी आस्किंग कैसे? सी, प्लानिंग पहली एक्टिविटी है, तो अगर प्लान ही अगर अच्छे से नहीं होगा, प्लान ही नहीं होगा, तो हाउ विल यू ऑर्गेनाइज? आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? लोगों को इकट्ठा कैसे करेंगे? क्या करेंगे? हाउ विल यू रिक्रूट देम? स्टाफिंग कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। जब प्लान ही अच्छा नहीं होगा, पता ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है, तो हाउ विल यू डायरेक्ट? आप डायरेक्ट किसको करेंगे? किसको बोलेंगे ये सही करो ये गलत करो, बिकॉज इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू प्लान। और अगर प्लानिंग ही नहीं है तो हाउ विल यू कंट्रोल? कंट्रोलिंग में होता क्या है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, कंट्रोलिंग में होता है जो अपन ने प्लान किया है उस उसमें और जो एक्चुअल काम हुआ है उसमें डिफरेंस इज कंट्रोलिंग। तो व्हेन यू विल नॉट हैव एनी प्लान, तो हाउ विल यू कंट्रोल? तो बेसिकली प्लानिंग के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरा एक बेसिस है सारे फंक्शंस के लिए। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट शुड बी एक्चुअली। ओके, ऑल राइट। सो प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब परवेसिव मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको कहा था कि ये वर्ड आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, दिस विल गोना बी देयर। ओके, इसका मतलब होता है सर्वव्यापी। ओके, नाउ आई एम एबल टू राइट इन अ गुड, मतलब एटलीस्ट यू कैन गेट सर्वव्यापी। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि planning is pervasive, planning is everywhere। okay, planning is required at all the levels of management as well as in all the department of organization। okay, मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन में तो जरूरी है ही, लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इधर इट्स 100 डिपार्टमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, 50 वट एवर इट इज, उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, it is like this only। It is not an exclusive function of the top management nor of any particular department, but
The scope of planning differs at different levels and among different departments. See, ये ऐसा नहीं है कि ये एक एक्सक्लूसिव फंक्शन है कि टॉप मैनेजमेंट का है या मिडिल का है या फिर लोअर का है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये इसका जो स्कोप है वो मतलब हर जगह बदलता रहता है। ओके, द स्कोप, सी व्हाट हैपेंस इज कि आप डिपार्टमेंट के हिसाब से जैसे जैसे डिपार्टमेंट चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके लेवल्स मैनेजमेंट के चेंज होंगे, वैसे वैसे द स्कोप ऑफ द प्लानिंग विल डिफर। ओके, तो वो जो डिफरेंस आता है प्लानिंग के स्कोप में, वो मतलब दैट इफ यू विल आस्क कि मैम हर जगह पे प्लानिंग क्या उसी स्कोप में रहती है, तो ऐसा नहीं है। सबका एक डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश्ड आइडिया होता है, ठीक है। इट वेराइज फ्रॉम one department to another, one level to another, but it will be there in every department, and the scope can be different at different levels, but it will be there. It is all pervasive. ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। अभी मतलब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है where let's take the top management undertakes planning for the organization as a whole. ओके, मिडिल मैनेजमेंट जो है वो डिपार्टमेंटल प्लानिंग करता है, लोअर मैनेजमेंट जो है वो डे टू डे प्लानिंग करता है, ऑपरेशनल प्लानिंग जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो जस्ट रिमाइंड दीज, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो एज अ होल प्लानिंग करता है। ओके, देन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो डिपार्टमेंटल प्लानिंग करता है, डिपार्टमेंट की प्लानिंग करता है। देन जो लोअर लेवल है वो डे टू डे प्लानिंग करता है। बट इफ यू ऑब्जर्व, प्लानिंग हर जगह है। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट, कोई जगह, कोई कहीं प्लानिंग नहीं हो रही। प्लानिंग इज एवरीवेयर, बट इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सी, दैट्स ऑब्वियस। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वो एज अ होल पूरा प्लान करके देगा आपको कि चलो दिस इज हाउ यू नीड टू परफॉर्म, मतलब लाइक एनुअली, होल ईयर, समथिंग लाइक दैट। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वहां पे डिपार्टमेंटल प्लानिंग होगी। ऑब्वियसली आप जो मैनेजर होगा वो अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग करेगा कि जो हमारे को ऊपर वाले मतलब जो टॉप लेवल से प्लान आया है उसको हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपने डिपार्टमेंट में एक प्लान तैयार करेंगे। दिस इज हाउ वी विल एग्जीक्यूट, वो क्योंकि वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन व्हाट विल हैपन कि आगे जाके जो डे टू डे प्लानिंग है, जो वर्कर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एकदम लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अपनी डे टू डे प्लानिंग करेंगे कि ऑपरेशन में कैसे प्लान करना है। प्रोडक्शन में रहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में रहते हैं, तो उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको वो अपनी एक इंडिविजुअल प्लानिंग रखेंगे कि हमें इस तरीके से परफॉर्म करना है, सो दैट ग्रुप गोल्स जो हैं, जो डिपार्टमेंट के गोल्स हैं, वो अचीव हो सके, ठीक है। ग्रुप गोल्स जो है वो अचीव हो सके। और जो डिपार्टमेंट वाला है वो ये सोचेगा कि जो टॉप लेवल ने हमारे लिए जो पूरे एज एन ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लान किया है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, वो अचीव हो सके। सो दिस इज हाउ दिस साइकिल विल गो ऑन एंड ऑन, बट इट विल बी परवेसिव, इट विल बी देयर। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि प्लानिंग जो है वो होगी नहीं, या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई जगह जहाँ प्लानिंग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलराइट, next, planning is a continuous process. Okay, it is a continuous process. Now you will be asking, जैसे मैनेजमेंट में मैंने बताया था कि वहां पे भी लिखा होता है कंटिन्यूस और परवेसिव में क्या फर्क है। सी, परवेसिव मतलब होता है एट ऑल लेवल्स, कंटिन्यूस मतलब होता है कंसिस्टेंट, मतलब कहीं रुकता नहीं है, वो हर जगह पे, हर पीरियड ऑफ टाइम, हर ड्यूरेशन में, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर प्लानिंग होगी। ओके, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा मतलब जो है वो होगी ही होगी। ओके, एट द एंड दैट पीरियड दैट देयर इज नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि, सी, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। व्हाई? आई टेल यू। आपने 12th 11th पास करते ही, सपोज 12th में ये डिसाइड किया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था आपने, ठीक है, कि दिसंबर तक मेरा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, ये सब्जेक्ट सपोज नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और सपोज अकाउंटेंसी जो है वो जैन तक मैं रिवीजन शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। ओके, नाउ ये आपने प्लान तो कर लिया, ठीक है। अभी इस प्लान को आप अगर टिके हुए रहेंगे तो बोर्ड ने 30% कोर्स जो है वो तो डिलीट कर दिया है, तो आपको चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, राइट?
चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि ओके अभी प्लान चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, प्लान उतना ही प्रोडक्टिव होगा लेकिन प्लान तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज है वो इम्पोर्टेंट है। सपोज आप यो गॉट इंजर्ड बाय एनी एक्सीडेंट और समथिंग, ऐसा कुछ ना हो पर ऐसा हो गया, तो आपके 30 डेज जो है वो वेस्ट हो गए। तो इन 30 डेज को आपके लिए, आपको इनको फिट करने के लिए आपको एक नया प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो 30 डेज वेस्ट हो गए तो उन 30 डेज में आपने पढ़ाई नहीं करी, या इट कैन बी एनीथिंग। पर अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो इट विल बी यू मतलब इट विल बी ओके टू हैव flexibility, to have changes, but planning will continuous. Okay, planning, you will not stop planning कि चलो अभी ये 30% का रूल आ गया है, मेरा प्लान पूरा फ्लॉप हो गया, अभी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। You will start a new plan according to the new requirement, right? Okay, अगर कुछ if you have missed like 15 days, 30 days or something like that, you will again plan. You will not stop, the consistency will be there. Okay, so this is how it is. तो planning एक continuous process है. Continuity of planning is related with planning cycle. Okay, जो planning cycle होती है which we are gonna do later. तो प्लानिंग साइकिल के हिसाब से जो कंटिन्यूटी है वो उसके ऊपर उससे रिलेटेड रहती है. ओके, इट मीन्स दैट अ प्लान इज फ्रेम्ड, it is implemented and it followed to by another plan and so on. इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग साइकिल का मतलब यही है कि आपने एक प्लान बनाया, ठीक है, सपोज आपने बिगनिंग में ही, सपोज आपका जनवरी में ही यू हैव प्लान समथिंग, ओके, देन आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करते करते जब वो इम्प्लीमेंट हो गया तो उसी प्लान के जस्ट नेक्स्ट यू हैव अनदर प्लान टू फॉलो, है ना, एंड सो ऑन, चलता ही रहता है, वो तो चलता ही रहेगा आगे से आगे, आगे से आगे. व्हाई? बिकॉज इट इज बिकॉज just a second, yeah, it is because कि आपने जो भी प्लान करा है आप रुक नहीं सकते एक जगह पे. सपोज यू वांटेड टू, सपोज दैट एग्जांपल, they wanted to extend it, they wanted to extend their business and they wanted to employ, okay, और उनके पास में 6 महीने का टाइम था. तो आफ्टर 6 months क्या हुआ कि उनका प्लान एग्जीक्यूट हो गया. तो क्या वो वहीं रुक जाएंगे, उसी को कैरी ऑन करेंगे? नो, दे विल हैव अनदर प्लान टू प्रोसीड. उसी प्लान के रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए दे विल हैव अनदर प्लान टू प्रोसीड, टू सी कि अभी कैसे क्या करना है, आगे कैसे परफॉर्म करना है, एंड सम सो ऑन एंड सो फोर्थ. देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो बेसिकली व्हाट आई मेंट टू से इज कि ये चलता ही रहता है, एक के बाद प्लानिंग की जो साइकिल है, इट फ्रेम वन बाय अनदर, एक के आगे मतलब चलता ही रहता है. ओके, जैसे कि आपका 12th का सेशन है, ठीक है, इनिशियली यू हैव डिसाइडेड, आपका फर्स्ट प्लानिंग ये था कि हमें बुक्स खरीदनी है, ठीक है. जैसे ही आपकी बुक्स खरीद ली आपने, उसके बाद में व्हाट विल यू थिंक कि ओके अभी आई हैव टू परचेज दी अदर एसेसरीज जो भी हैं, bottle, tiffin, whatever it is, the books, pencil, pen, पाउच एंड ऑल, ठीक है. तो जो भी एसेसरीज है वो आपको खरीदनी है. उसके बाद में ये प्लान खत्म हुआ तो इसी एसेसरीज खरीदने के बाद में नेक्स्ट प्लान क्या आया, आपको यूनिफॉर्म खरीदनी है. यूनिफॉर्म के बाद में यू विल बी थिंकिंग कि अभी स्कूल जाना पड़ेगा बिकॉज स्कूल शुरू होने वाली है. स्कूल में भी यू मस्ट हैव सो मेनी डिफरेंट प्लान. तो ये एक के बाद चलते ही रहते हैं और ये हर किसी के चलते रहेंगे, ठीक है. तो that is what the planning is, that is what it says, that it is a continuous process. Okay, now planning is futuristic. अभी futuristic का मतलब होता है जो फ्यूचर को फॉरवर्ड करती हो, ठीक है. इट इंक्लूड्स इट इन्वॉल्व्स लाइक लुकिंग अहेड, कि आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, सपोज सी कुछ भी, ऑब्वियसली प्लानिंग हम आज के दिन के लिए तो नहीं कर रहे होते हैं. अगर मैंने मॉर्निंग में भी कुछ प्लान किया तो वो किया तो पूरे दिन के लिए है, तो इट विल मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि सारा कुछ काम हो गया उसके बाद आई विल प्लान फॉर फ्यूचर ओनली. अब वो फ्यूचर कितना भी टर्म का हो सकता है. तो इट इज फ्यूचरिस्टिक. द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स effectively to the best advantage of an organization. Okay, the purpose of planning is to meet future events
फ्यूचर इवेंट्स को इफेक्टिवली मतलब आप अच्छे से जो आपने प्लान किया है वो इफेक्टिव रहे, इतना कि आपके फ्यूचर इवेंट्स जो भी हैं, जो भी आने वाले हैं, वो एकदम अच्छे से हो पाए. It implies peering into future, analyzing it and predicting it. फ्यूचरिस्टिक का मतलब यही है कि मतलब ऐसा होता है ना, आगे की तुम घुस के देख लो कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, उसको अच्छे से एनालाइज करो और प्रिडिक्ट करो पहले. ठीक है, पहले तो आप फ्यूचर को डिटरमाइन करो कि ये ऐसा कुछ हो सकता है. जब ऐसा कुछ हो सकता है तो यू हैव टू एनालाइज दैट कि क्या क्या चीजें हो सकती है. ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू विल प्रिडिक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रिडिक्शन यू विल प्लान. So this is how this will go on and on. So planning is therefore regarded as a forward-looking function based on forecasting. It is based on forecasting, where you will plan, where you will forecast some things, and there how then only you will plan your problems, you will plan everything. So though forecasting future events and conditions are anticipated, plans are drawn accordingly. ठीक है, जो भी forecasting होती है, फ्यूचर इवेंट्स है, कंडीशंस है, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्लान जो है वो ड्रॉ किए जाते हैं. सपोज सीबीएसई declared, as I said, the moment they declared the 30% delete वाला चीज, तो तभी तो you guys will be like अरे मजा आ गया, ये वो ठीक है. लेकिन the people who are toppers, who want to top, and from initial मतलब like from the initial stage, what they will plan, they'll see how much course has been deleted. 30% मतलब 30%, there are some topics which has been deleted. Okay, they will see, they will analyze first कि okay, these topics has been deleted. Then they will check from the last year paper कि क्या क्या important topic थे जो अब आने के chances कम हो गए हैं. ठीक है, तो they will forecast then, they will predict then कि okay, ये topics तो आ ही नहीं रहे हैं, मतलब these topics are not important. Now the rest of topics are important. Okay, तो ये सब एनालिसिस करने के बाद में, फ्यूचर के बारे में सोचने के बाद में कि ओके आई कैन गेन दिस मच मार्क्स, आई कैन यू नो दे प्रिडिक्टेड. अभी वो हो सकता है सही हो, गलत हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दे प्रिडिक्टेड एंड दे सेड ओके दिस इज हाउ इट इज. अभी उस हिसाब से आई हैव टू प्लान, एंड आई विल प्लान फॉर माई फ्यूचर, for the future outcomes. Obviously result will come next year. तो ये तो है, लेकिन उन्होंने इस हिसाब से इस चीज को प्लान किया, and there how they performed. So this is how it frames, this is how it मतलब you know it is futuristic. Okay, thus for example अभी एक दूसरा example ले लेते हैं. Sales forecasting is the basis on which the business firm prepares. Okay, सेल की जो forecasting होती है उस हिसाब से ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रिपेयर करता है खुद को. इट्स एनुअल प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स. ठीक है, तो वो जो भी होता है ये एनुअल प्लान प्रोडक्शन और सेल पे ही डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से फोरकास्ट होगा. एंड इन दैट प्रोसेस आप सोचते हैं कि ओके ये हमारी फोरकास्टिंग है, हमें इतना इतना सेल करना है, उस हिसाब से हमें इतना प्रोड्यूस करना है और मैन्युफैक्चर करना है, उस हिसाब से हमें इतने लेबर चाहिए, एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपेंड इन ऑर्गेनाइजेशन जो कि फोरकास्टिंग के बेसिस पे होता है. तो द बेसिक मीनिंग इज कि आपने एक फोरकास्ट किया, कुछ सोचा, उस अकॉर्डिंगली यू प्रोसीडेड. ऑलराइट, ओके. सो अभी नीड और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फटाफट से, तो अगर आपको याद रखना हो तो यू कैन रिमेम्बर बाय दिस. सी ये दिस इज द चार्ट वेयर जहाँ पे मैंने कुछ 14 वो लिखी हैं. what do I say? Yes, 14 characteristics hai, which you need to follow. It is a mental process. This characteristics we are gonna do. It is goal oriented, objectives attain करने के लिए होता है. Primary function है management का. Pervasiveness मतलब it is all everywhere. Uniformity रहती है मतलब कि you have to be unanimous, you have to be fair everywhere, every department, every level. Continuity रहती है, it is a continued process, ये change होता रहता है. Planning में एक simplicity होती है, you just cannot be हवा में plan कर सकते हो. You have to see the simple facts, accordingly you should plan. Okay, the feasibility is there. choice among alternative courses. बहुत सारे courses को ध्यान में रखते हुए you have to choice. Okay, efficiency बनी रहती है, interdependence रहती है कि आप एक के ऊपर आप dependent है, मतलब एक
टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल पे डिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट्स पे डिपेंडेंट है, एंड सो ऑन, and it includes forecasting as well. Okay, so this is how it forms, this is how it is. You can, if you want to write, you can write. These are like short nature जो कि 14 है, and rest we are gonna cover in the next lecture. Okay, all right, thank you so much, bye bye.